Students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, this is your lecture number 9. Student, in the previous lecture, we have discussed some numerical problem based on Coulomb's law. Okay. Today, again, we will discuss numerical problem based on Coulomb's law. Right. So let's start. Numerical is two charge is equal to q are kept, x is equal to minus a and x is equal to plus a on the x-axis, right? A particle of mass m and charge q naught, this is equal to q by 2, is placed at the origin. Okay, if charge q naught is given a small displacement y is very less than a along the y-axis, calculate the net force on the particle. Okay, so according to the question we draw the diagram. Okay, first of all we draw the two axes, x-axis and y-axis. Okay, so suppose this axis is x-axis. This is your x-axis, right? And this is your y-axis. Okay, student, this point is origin, so this point is O, right? Okay, two charge each equal to q are kept, x is equal to minus a and x is equal to plus a. Suppose here we consider a point on the x-axis, point A, and here we consider another point on the x-axis B, right? This is your x-axis, positive x-axis, right? And this is your negative x-axis, right? X dash. This is negative x-axis. Same here, this is y-axis, positive, and this is y dash, negative. Okay. So, charge first is x is equal to minus a. So, suppose here a charge q are placed at point A on the x-axis, and distance of this point A from the origin, this is A. Okay student, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पॉइंट A की डिस्टेंस तो ये x इक्वल टू माइनस ए बता रहा है. So minus a only represented the direction of this point. Okay, only direction. Minus sign are represent only the direction. Means कि ये point x axis पे negative axis पर है, x dash axis पर है, ठीक है? So but distance is not a negative. Distance is always positive. So this is a. Now second charge placed on the x-axis but plus a. Plus a means suppose this point B, and the distance of this point from the origin, this is also a. Okay, this a particle of mass m q naught, this is equal to q by 2, is placed at the origin. So यहाँ पे origin पे एक charge है q naught, right? Now q naught is given a small displacement y is very less than a. अब इस चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया, मतलब कोई भी फोर्स लगा के इस चार्ज को डिस्प्लेस किया, और कितना डिस्प्लेस किया y, और कौन से एक्सिस पे, along the y एक्सिस. सपोज दिस पॉइंट C, हम इस चार्ज को पॉइंट O से डिस्प्लेस करा के पॉइंट C पे ले गए, और ये पॉइंट C कहाँ पे, एट द on the y axis, right? So the new position of the charge q naught, this point C, right? अब ये चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है q naught point C पे, right? This. So A to C, B to C, this. Okay. So according to the question हमने डायग्राम को बना लिया. डायग्राम क्लियर हुआ? Suppose student, this is angle, this is the angle theta, and same this angle is also theta. Okay, and this distance OC, this is y, because उसने बोला कितना डिस्प्लेस करके ले गए आप उसको, y डिस्प्लेस करा के ले गए. So this distance is y.
एंड y इज वेरी वेरी लेस देन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम को बनाइए बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं रब करके। Now, first of all, let the charge placed on a point A. This is A Q1 and this is equal to Q। यहाँ हमने मान लिया कि पॉइंट ए पे Q1 चार्ज रखा है। सिमिलरली पॉइंट बी पे नाउ let the charge placed, okay, let the charge placed on the point A, okay, Q1 this is equal to Q। Similarly the charge placed on the point B, this is Q2 equal to Q, right, and point C पे Q0, okay। Now so beta due to this charge placed at a point A, इस चार्ज Q0 पे एक फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, बिकॉज दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज है जो पॉइंट ए पे प्लेस्ड है, ये वाला चार्ज इस पॉइंट सी पे जो चार्ज रखा हुआ है Q0, इस पे रिपेल फोर्स करेगा, रिपेल लगाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स दिस, सपोज दिस फोर्स इज Fa, राइट। सेम जो पॉइंट बी पे चार्ज रखा हुआ है ये वाला Q, ये भी इसको रिपेल करेगा एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिपेल दिस force is called F, right? Suppose this angle is theta, so this angle is also theta, this angle is also theta, and this angle is theta, so this angle is also theta, right? Now student, distance AC, दिस इज इक्वल टू BC। ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी का सेम है, ओके। सो डिस्टेंस AC आर इक्वल टू डिस्टेंस BC। हाउ मच? दिस इज इक्वल टू सपोज दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल OCA, सिमिलरली OCB, right angle triangle। So this side is hypotenuse and use Pythagoras theorem। This is equal to this is A and this is Y, means AOA OCY। So this is equal to use Pythagoras theorem, A square plus Y square, right? Similarly this side A square plus Y square, use Pythagoras theorem। So distance AC are equal to BC, this is equal to A square plus Y square, okay। Now distance AC are equal to BC, same force FA are equal to FB, because here जो फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट C पे ड्यू टू दिस चार्ज Q1, this is FA, okay, and this is Q2, due to Q2 this is FB, okay। so ये जो डिस्टेंस है पॉइंट C का फ्रॉम A फ्रॉम B, दिस डिस्टेंस इज सेम, सो फोर्स भी सेम होगा क्योंकि चार्ज भी सेम है दोनों पे, पॉइंट ए पे भी उतना चार्ज है और पॉइंट बी पे भी उतना चार्ज है, तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो कोई चीज चेंज हो ही नहीं रही है, तो फोर्स भी कैसा होगा, ये एफ ए और एफ बी बराबर फोर्स होंगे, यानी पॉइंट सी पे जो फोर्स लगा रहे हैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आर सेम, ओके, दिस इज इक्वल टू एफ।
Okay. Now FA are equal to FB, FA are equal to FB are equal to F. So now first of all we solve the net force on the particle C. Student, you know very well in the previous class 11th, force is a vector quantity. When two and more than two force are act on a particle, so we solve use of vector rules and vector फॉर्म. ठीक है, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट सी पे दो फोर्सेस एक्ट हैं एफ ए और एफ बी, तो इसको हम वेक्टर लॉ से सॉल्व करेंगे. ठीक है ना, और अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ सपोज दिस फोर्स इज एफ ए और इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं. ठीक है ना, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं और इसके टू कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं. सपोज हियर दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट किसका, और एफ ए का. ठीक है ना, एफ ए, और इसी के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट ब्रेक होगा. सपोज दिस इज, ये सेकंड कंपोनेंट हो गया. तो आपने इस एफ ए के ऐसे करके दो कंपोनेंट्स ब्रेक करा लिए. अब देखिए यहाँ पे ये एफ ए दिस, ये एंगल बनाता है इस वाले एक्सिस के साथ, तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो वाला कंपोनेंट कॉस में ब्रेक होगा. तो ये एफ ए का ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ ए कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना वो वाला कंपोनेंट हो गया एफ ए साइन थीटा. राइट दिस, तो एफ ए के आपने ये दो कंपोनेंट्स ब्रेक करा लिए. सेम हियर एफ बी के दो कंपोनेंट्स ब्रेक करा लीजिए बेटा. तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, इसी डायरेक्शन में. ओके दिस, सो हियर सेम एंगल जो मेक हो रहा है वो इस एक्सिस के साथ हो रहा है, तो इस एफ बी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ बी कॉस थीटा. राइट, एफ बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा एफ बी साइन थीटा. डायग्राम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, दिस एफ बी साइन थीटा. ओके, नाउ एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा. एफ बी साइन थीटा, देखिए एफ ए और एफ बी ये तो दोनों बराबर हैं एफ के, और साइन थीटा दोनों में सेम है. तो एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा आर सेम. ठीक है, बट इज अपोजिट, ये इक्वल है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है. तो एफ ए साइन थीटा एंड एफ बी साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel out. Okay student, f b sin theta and f a sin theta are equal and opposite, so they are cancel out. But f a cos theta and f b cos theta are equal and same direction. ठीक है, f a cos theta and f b cos theta are equal and same direction. So they are added up. ठीक है, so they are added up. ओके, तो इनको हम लोग क्या करा देंगे, दोनों को एफ ए cos थीटा और एफ बी sin थीटा को ऐड करा देंगे और ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए. सो नोट डाउन नाउ. So f a sin theta, f a cos theta and f b sin theta added up. Then net force on the particle. Net force on the particle is F net. This is equal to
एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, राइट स्टूडेंट्स। इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने ऐड करा दिया क्योंकि ये सेम भी है और एक ही डायरेक्शन में है, एफ बी कॉस थीटा एंड एफ ए कॉस थीटा। सो बट एफ ए आर इक्वल टू एफ बी, so f net this is equal to, we can write here f a are equal to f b and both are equal to f, so f a की जगह भी f और f b की जगह भी f, तो ये कितना हो जाएगा f cos theta plus f cos theta, right, and this is equal to 2f cos theta, so this is equal to 2f cos theta, right, this. So now suppose this is equation number 1, या अभी यहाँ पे आप f की वैल्यूज और लगा सकते हैं। नाउ f net दिस इज इक्वल टू 2, व्हाट इज f? f इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर एक्ट ऑन द पार्टिकल c ऑन द पार्टिकल q नॉट, सो दिस इज इक्वल टू, इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा था, या तो इसकी वजह से निकाल लीजिए, इसकी वजह से, यानी या तो f a कैलकुलेट कर लो या फिर पॉइंट b की वजह से, क्योंकि या तो एफ ए कैलकुलेट कर लो या एफ बी कैलकुलेट कर लो, क्योंकि दोनों ही एफ के बराबर है। तो मान लो अगर आप एफ ए कैलकुलेट करते हैं तो एफ ए ये लगता है इस चार्ज पार्टिकल के बीच में और इस चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, यहाँ पे कितना चार्ज है क्यू और यहाँ कितना चार्ज था क्यू नॉट, और डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच ए ओ, मींस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू बाय कूलम्स लॉ 1/4 pi epsilon naught q1 का मीन्स दिस q into q2, q2 मीन्स q नॉट, और वैल्यू कितनी थी q नॉट की, आंसर इज q/2, q नॉट एंड q नॉट दिस इज इक्वल टू गिवन इन न्यूमेरिकल q/2, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन था, q नॉट q/2 है, सो q/2 ये आ गया अपॉन इनटू r स्क्वायर मींस डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम ए ओ, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आर स्क्वायर, जैसे होल स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, दिस इज इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, so we can write here this is equation number 1. आपका डायग्राम बना हुआ है बेटा, उस डायग्राम से आपका ये डायग्राम था, ए बी ओ सी, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो इस एंगल थीटा ये दिस इज वाई दिस इज ए, ओके, सो इस एंगल थीटा के लिए हम cos थीटा निकालना चाहते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ए इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ए, सो cos theta this is equal to cos is equal to base upon hypotenuse, so here base, this angle is theta, so base is this side means OC is base, ठीक है, and hypotenuse is AC, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होता तो ये आप लिख सकते थे बेस, लेकिन क्योंकि इस एंगल के लिए निकालना है तो OC बेस, OC upon AC, what is the value of OC, this is equal to Y, what is the value of AC, this is AC, this is equal to this is equal to A square plus Y square, right, put the value in equation number 1, put in equation number 1, so we get F net this is equal to 2 सौ 2 कैंसिल भी करा सकते हैं इधर, तो आपके पास बच्चा बेटा यहाँ से here 1/4 pi epsilon naught q into q square upon a square plus y square into cos theta, and what is the value of cos theta, y upon square root y upon square root
a square plus y square, right? Yes. So we solve this calculation. When we solve this calculation, we get f net. This is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 epsilon naught q square upon a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 और इधर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं बेटा 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट की पावर 1/2. सो 1 एक पावर यहाँ पे है और 1/2 पावर यहाँ पे, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, राइट? 3/2 एक पावर यहाँ पे और 1/2 पावर यहाँ पे 3/2 और into y. Okay, student, in this question numerical आपको given था y is very less than a. Then y is very less than a. So y square is very less than a square. होता y की जगह suppose 2 है और a की जगह suppose 10 है, तो here difference is 8. जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे 100, y का स्क्वायर करेंगे 4, ये डिफरेंस और ज्यादा हो गया. यहाँ केवल 8 का डिफरेंस था और यहाँ डिफरेंस हो गया 96 का, राइट? सो इट मींस कि जो y स्क्वायर a स्क्वायर के कंपैरिजन में और ज्यादा छोटा है. सो नेगलेक्ट करा दीजिए इसको. नेगलेक्टिंग y स्क्वायर. सो जैसे ही आप y स्क्वायर को नेगलेक्ट कराएंगे, वी गेट f net, this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon, किसको नेगलेक्ट कर रहा है, इसको तो खत्म करा दिया, क्या बचा यहाँ से a स्क्वायर. सो a स्क्वायर और उस पर पावर कितनी है 3/2 into y, and this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon, ये 2 से 2 कैंसिल, a की पावर a q into y, right? So this value 1 upon 4 pi is constant, value of q is fixed, value of a is fixed, so a की q is fixed. मतलब जो डायग्राम में ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है और ये कांस्टेंट है, ये तो किस पे चेंज हो रहा है, मतलब ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, राइट? नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. या फिर आप यहाँ भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है यहाँ तक, और चाहे तो एक स्टेप आगे और बढ़ सकते हैं. थैंक यू. यहाँ तक ये क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका? अच्छा, नोट करिए इसको. So today we will close here. In the next lecture we will discuss a new topic, electric field. Okay, so thank you.